A very good morning to all of you, beta. We are going to start with some basic concept of chemistry. That is the first chapter. Okay. Now, in this beta, very first thing, what you all should know, what is an element ka definition that you have to mark, right? Element are the substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. Then, beta, we know the elements are further classified into metals, non-metals, and you all know the properties of metal. They have luster, conduct electricity. All this thing will just skip. Okay. Then non-metals, right? All non-metals are poor conductor except what, beta? Graphite. Graphite is a good conductor. Okay, right now? Yeah. Then the metals are malleable, ductile, sonorous. Non-metal are non-malleable, non-ductile, non-sonorous. Okay, right? Metalloids. Metalloid shows property of both metal and non-metal. Boron, silicon, arsenic, germanium. These are the examples. Then what do we have? Compounds. Compounds are the pure substances which cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. क्या मैं NaCl में से ऐसा break करके Na और Cl can I separate it? No, na. It can be done that, but that is by electrolysis. That is different thing. So that is different process. Anyways, mixtures we all know, states of matter we all know, solid, liquid, gas. We are not interested in that directly. हम लोग हमें main चीज पे आ जाता है. हाँ. Measurement of properties. Measurement you have already studied, beta. There are two types. What are the units, beta? We have already studied. The arbitrarily decided and universally accepted standards are known as what? Units. Okay. First is what? CGS system. Centimeter, gram for mass, and second for time. Okay. MKS you have done in physics. That is why, beta. Okay. Meter, kilogram, second. In 10th also you might have done this. Yeah. Now, yeah, what are SI unit, beta? It is international system of units. Clear? Okay. SI unit is based on basic 7 units and rest all are derived. Hello. Length is L, SI unit is meter and all those you all know ना बेटा. खाली इसमें ना आपको याद रखना है, इसमें luminous intensity आपको याद रखना है बेटा. Luminous intensity. Okay. Yeah. Candela it is. What beta? Candle or CD. Okay. Rest all you all know. Length is mass. There's all those things. All this is time pass. Okay. Now, beta, from this I can derive many derived units. Yes. Please come. Close the door. Yeah. चलो set. कौन नहीं आया और आज ये एक से ना कितना बेटा आया. चलो. वेदांत. हाँ वो आने वाला था आज. चलो. Anyways, not a problem. Mass and weight. Okay. Then length is in what beta? There are different unit for length. Okay. Mass में खाली आपको इतना याद रखने का. 1 kg is 1000 gram. याद रहेगा ना बेटा? अरे क्या दे रहे हो? And beta 1 gram is how many milligram? अरे 10⁻³ मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³. ओके. मिली मीन्स अच्छा. अभी मैं तुमको बता देता आप लोग को इसके बारे में भी. ओके. लेंथ में बेटा हम लोग क्या क्या यूनिट यूज करने वाले हैं? मिलीमीटर यू नो बेटा. mm, centimeter. Okay. These two you know. But one new one is which one beta? नैनोमीटर, पिकोमीटर. ओके. ये सब नया आएगा. अच्छा. नैनोमीटर कितना होता है? अंडरलाइन कर दो. 10⁻⁹. पिको इज 10⁻12. अरे ये सब फिजिक्स का पार्ट है बेटा. ये हम लोग पढ़ाते भी नहीं है केमिस्ट्री में. तुम लोग ने किया नहीं यूनिट मेजरमेंट? अरे होगा बेटा. कन्वर्जन. ओके. कोई बात नहीं. इतना याद रहेगा ये. चलो बेटा. हाँ वो मैं सब बताया ही नहीं रहेगा. फर्स्ट चैप्टर वी आर जस्ट स्टार्टेड बेटा. यू नॉट मिस्ड एनीथिंग. आगे कुछ कराया नहीं. वो मेरा बेसिक थिंग है. खाली यहाँ मेन पार्ट में वी हैव स्टार्टेड. कम डायरेक्टली टू द मेन पार्ट. Okay. Volume 1A. 1 liter is also 1 dm³ which is 1000 ml and that is how much beta? 1 m. अच्छा देखो मैं तुमको बता देता हूँ. ml is also known as सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको cc भी बोलते हैं बेटा. है कि नहीं बेटा? ओके. तो 1000 ml की जगह पे मैं ऐसा cm³ लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो? ओके. Now we are going to go for the different unit. Density, derived unit. Okay. Density is what beta? Mass upon volume or not? Tell me. Yeah. So mass is in what? Kg. This is in what beta? Okay. Volume is in meter cube. So kg per meter cube.
If I take in CGS system, then it will be what beta? Gram per ml or gram per centimeter cube. I hope you are getting it beta. Clear है? Okay. टेम्परेचर, हाँ बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा. टेम्परेचर का वी आर गोइंग टू डू द स्केल. मोदी ना, क्या नाम था उसका, कल आया था कोई फॉर फिजिक्स, ही हैड कम. चलो बेटा, टेम्परेचर, बट ही नोज दिस क्लासरूम और नॉट, आई डोंट नो. तो वो वहां पे तो नहीं गए. अच्छा, ही केम फ्रॉम मैप ना. ओके फाइन. टेम्परेचर बेटा, वी हैव, हमने scale you might have studied na, have you studied 3 degrees Celsius, Fahrenheit and all? Okay, and Kelvin. Now look beta, in your lower standard you used to take 273, but here in SSC board will take 273.15. but even if you take 273, then also there won't be any problem. तो खाली है ना टेम्परेचर का ना यहाँ पे ना बाजू में लिख लोगे क्या, वहाँ पे लिख लो ना. और वन कन्वर्जन दे में आस्क बेटा. ओके ओके, हाँ हाँ दिया हुआ है बेटा यहाँ पे. लो, दिस इज फॉर इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू, बोलो degrees Celsius into Fahrenheit, and this is degree Celsius into Kelvin. Even if you will take 273, it is fine enough. समझ में आ गया ना बेटा. और तुम्हारा इसमें हो गया डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ये हो गया तुम्हारा. और कौन सा कन्वर्जन हम लोग को करने का है, इसका मैसेज भी नहीं आ रहा है. ठीक है, और एक बाजू में हम लोग ये लिख देंगे. Do we have to compulsory take? What? Do we have to take 0.15? No, don't take. एक ये कन्वर्जन लिख दो ना बेटा. दिस इज फॉर व्हाट? फ़ारेनहाइट इनटू डिग्रीज फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस. डिग्रीज फ़ारेनहाइट इनटू, अच्छा मैं तुम लोग को ग्रुप में ही भेज देता हूँ एक टेस्ट. This I want you to take down this, this right there, copy write it. Okay. Now इस पे भी what type of question they will ask. चलो. हेलो, चलो मैं अभी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँ क्या इस पे. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, लेट अस स्टार्ट. ओके, या हाँ हाँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाता. पहले एकदम बेसिक वाला पूछ लेता तुम लोगों को. -273 डिग्री सेल्सियस इंटू कैलविन. कम ऑन. हाँ ये लिख लो बेटा थोड़ा अलग से. हाँ मतलब यहाँ, हाँ. तो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर फॉर डिग्री सेल्सियस इंटू कैलविन? So what you are going to do, -273 degree plus, I will take 273. Okay beta, plus 273 we are going to do na beta, right? Okay, so what I am going to get, अरे यार ये क्या आ गया, अरे यार. So it will become how much? 0 Kelvin. Understood? First conversion. Hey, -273 degree Celsius is also known as which temperature? Absolute zero. क्यों ऐसा बोलते हैं बेटा? देखो बेटा, मैंने गैस लिया है, गैस को इतना कूल किया ना कि 0 डिग्री पे, -273 डिग्री पे आएगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड आइदर इनटू लिक्विड और सॉलिड. तो गैस गायब नहीं हुआ, इट हैज बीन कन्वर्टेड. So its molecular motion ceases. Therefore we call it as absolute zero temperature. Second question, चलो बेटा, do this on your own. 35 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट. करो, ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है सामने. 35 डिग्रीज इंटू फ़ारेनहाइट. कम ऑन, ये कन्वर्जन देखना बेटा. तो हाउ मच विल गेट? 9/5. और डिग्री सेल्सियस कितना है इसमें? +32. So what answer you will get? 5 ones are and this. So that will be how much? Plus. So how much you will get? Fahrenheit. Conversion based question can come. मैंने उसको मैसेज किया था, क्या क्या नाम था उसका?
Same school, your school only. चलो आया ही नहीं है शायद उसका। ओके बोला था उसने, यस। उठा नहीं होगा। एनीवेज, डन बेटा दिस। हेलो। क्या जीरो केल्विन लिखा है ना, ये क्या है? केल्विन इज द यूनिट। हाँ, जीरो के भी लिख सकते हो, तो वो ओके दिखता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने केल्विन पर लिखा है, ठीक है। ओके। डन बेटा। चलो नाउ नेक्स्ट, अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वन यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन। अरे जाना भाई, इतना पकड़ा है क्या? यहाँ पे ही करता हूँ मैं, नया पेज पे जाने का ही नहीं। चलो आ भी जाओ। थर्ड वाला मैं दे रहा तुम लोगों को। बेटा बेटा 77 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। सॉरी, नहीं नहीं, हम लोगों ने किसका किया बेटा? हाँ 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 हाँ, रेट हाँ, 77 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री। 77 माइनस 32 कितना होता है? 82 लेना पड़ेगा ना मुझे। हाँ हाँ, हो गया ना, एग्जैक्ट आ रहा है ना, 45 आ रहा है ना। क्या करेगी बोल बेबी? ए यहाँ पे होल ब्रैकेट है, याद रखना। तो व्हाट यू गोइंग टू डू? 5/9 into degree Fahrenheit. How much it is given? 77 minus 77 minus 32 कितना होता है? 45. So 9 ones are 9. So how much it will be? हाँ बस, ये समझ में आ गया। लास्ट वाला क्या होगा बेटा? केल्विन दिया रहेगा और आपको किस में कन्वर्ट करने को बोलेंगे? वो कर दिया ना हम लोग ने, कर दिया ना, चलो ठीक है, इजी। प्लीज बेटा बी केयरफुल व्हेनेवर यू डू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे इट इज होल ब्रैकेट, कैन यू सी? एंड हियर इट इज ओनली डिग्री वाला, +32 बाहर रहेगा बेटा। क्लियर है? तो ये इस पे डिग्री टेम्परेचर वाला कन्वर्जन आपको आएगा ये। हेलो, विल गेट इट ना बेटा। चलो कभी का ले चल, फटाफट हो गया। डन 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 डन। चलो 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 चलो, डन 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 डन। राइट, ओके। एक मस्त क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बेटा, ये वाला। Which of the following temperature will have same values of Celsius and Fahrenheit? सेम वैल्यू मतलब सेम वैल्यू, मतलब कोई भी सपोज ऐसा x डिग्री सेल्सियस होगा तो x डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा। चलो सोचो। कम ऑन, थिंक थिंक थिंक। पहले -40 डिग्री को लेके देखना क्या आता है। मतलब तुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, तेरे को पहले -40 डिग्री लेके तू अगर फ़ारेनहाइट में डालेगा तो कितना मिलेगा? अरे 9/5 इंटू वॉट बेटा? 40 +32 करेगा तो कितना आंसर आएगा? तो भाई से फोन आ गया। एक ना, एक ना, एक एक सौ सॉरी। हाँ नमस्ते। हेलो।
And it's a 32. अरे एकदम एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट आहे. केव्हा येतात भाऊ तुम्ही? आता संध्याकाळी, पण मी आज घरी नसणार देवा. हा हा या हा हा चालणार चालणार, हरकत नाही. हा. Not the same. हा. The Okay. word itself, yes, it's not. The same. I did 40 minus 30. हा. Oh, it's minus 50. You added 8 minus. चलेगा, दौड़ेगा. ठीक है. Oh, It's not. yes. So sorry. Yeah. ये क्या है आंसर? कितना है इस पे? नहीं. अरे This is 104 degree Fahrenheit. ये कितना आ रहा है तेरा? 104 degree Fahrenheit. 9 तो 104 क्या आएगा तेरा? ये हम लोग ने डिग्री लिया था ना, फ़ारेनहाइट. हाँ, तो अभी इसको बेटा वापस इसमें डाल. Celsius is minus 40 degrees Celsius. हाँ, तो सेल्सियस पे ले कितना आ रहा है? Minus no, because it's minus अरे 40 minus 32. So you add the surface. which one? This one? Plus 40. हाँ, मैंने -40 लिया है ना पहला. माय बैड, सो सॉरी बेटा, ये फोन आ गया ना, उसके चक्कर में हो गया. ये -40 था ना, तो कितना हो रहा था बोलो? हाँ, तो माइनस कितना था? 72 + 32. ओ या -40 आया कि नहीं? अरे ओके यार, सो सॉरी. काम डाउन या. तो यही टेम्परेचर दोनों पे सेम रीड कर रहा है कि नहीं? अरे बोथ स्केल इट वाज हैविंग सेम वैल्यू और नॉट? एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? आई एम सो सॉरी बेटा. चलो बेटा, अभी नाउ वी आर गोइंग टू डू द लॉ. लॉ सब उल्लू बनाने का काम है बेटा. इट इज वेरी इजी. पहला लॉ कौन सा है? हेलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चलो अभी जाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अरे यार, ये सब 9th में भी पढ़ा था आप लोगों ने. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हाँ बस खत्म हो गया. बट हम लोग केमिस्ट्री में एग्जांपल देंगे बेटा, ठीक है ना? तो इन शॉर्ट बताओ क्या इसमें क्या है. तुमको इन शॉर्ट में बता दो. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. So during a course of chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. Okay, it is can be converted from one form to another form. चलो बेटा अभी आ जाओ बेटा, एक एग्जांपल दे दूं सिंपल सा. चलो आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, व्हाट डू यू गेट? कार्बन डाई. अच्छा, एंड व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन बेटा? 12. एंड ऑक्सीजन इज हाउ मच बेटा? 1 का 16 है. तो यहाँ पे इसका कितना मास होगा बोलो बेटा? हाउ मच इट इज? 12. Oxygen, how many are there? 2 हो ना बेटा? Can you see? So 2 into 16, so that will be how much बेटा? 32. हाँ. और यहाँ पे कितना होगा बोलो बेटा तुम्हारा? सेम ना, 12 + 2 into 16, right बेटा? So if you add up this, so 12 + 32 is how much बेटा? Total here it is how much? 44. And on this side also it will be how much बेटा? तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन. लिखना है तो खाली ऐसा लिख दो और खाली छोटे में लिखो फटाफट. अरे ये पहला हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट लिख दो. ये एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट. स्टेटमेंट यू रेफर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और द नोट्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू ऑल. अच्छा, है ना वो सीईटी देने वाला है ना तू? तो खाली वर्ड्स है तेरा. अरे नहीं, मुझे वो पोर्टल का तुम्हारा नाम ऐड करना. अरे मैं व्हाट आई एम टेलिंग यू बेटा, यू जस्ट गिव इट. इट इज रिलेटेड फ्रॉम व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग. सीईटी का देयर इज नो न्यू सिलेबस. ओके, कीप योर ऑप्शन ओपन. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. तेरे को भी दिया था ना मैंने उस दिन सीईटी का नोट्स. सबको मिला ना? सब तेरे को सारे नोट्स मिल गए? दोनों नोट्स मिल गए? 2 बुक थे ना? हाँ बस. तुझे बेटा एक भी बुक नहीं मिला है ना? हाँ, बाकी सबको मिल गया ना 2 बुक. ए गौरी, क्या हुआ? तूने घर पे बात किया कि नहीं किया?
हाँ बस, हाँ तो देना ही है। तो मैं आज देखो दूसरा बुक दे, अरे बेटा इट इज सेम, इसी से रिलेटेड है। और उसका टेस्ट बेटा आपको घर पे से देना है? मतलब मैं जो टेस्ट कंडक्ट करूंगा वो आपको घर से देना है। हाँ हाँ, ऑनलाइन ही होने वाला है वो। आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा ना? और कॉलेज, अरे तुम्हारा मेन जो सीटी का एग्जाम होगा वो भी कंप्यूटर पे ही देना होगा। नहीं, वो तेरे को खाली सेंटर में जा, अरे यार इतना थोड़ी होगा, सेंटर में जाके दे रहे। तो इट विल नॉट, देखो यहाँ फॉर सीईटी के टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे आने जाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं जो सीईटी टेस्ट लूंगा वो एवरी संडे संडे होगा, मतलब यू नो वंस वी कंप्लीट अ चैप्टर एंड देन वी कंडक्ट दैट पर्टिकुलर टेस्ट। ठीक है ना, चलो आ जाओ। अरे एमसीक्यू होगा रे बेटा, और है ना तुम्हारा सीईटी का यही बेसिस पे होगा। चलो, आर यू गेटिंग क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके चलो नेक्स्ट पार्ट, लॉ ऑफ, हो गया आगे। दिस वैल्यूज विल बी गिवन ना बेटा, ये सब, और वो तुमको भी पता है बेटा, आप लोग ने 10th में भी पढ़ा था ना बेटा, ऑल दिस वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट लॉ, ये समझा बेटा मैंने कौन सा लॉ कवर करवाया आपको, मैं टेक्स्ट बुक में बता देता हूँ। ये देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। देखना, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ विच प्रपोर्शन वी आर गोइंग टू डू बेटा? डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है ना बेटा। व्हाट इज दिस, एकदम ये, हाँ ये आप लोग ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। खाली मैं ना एक्सप्लेनेशन देने वाला, स्टेटमेंट वहां से पढ़ ले। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इतना चिंदी लॉ, ये लोग ना स्टेटमेंट ऐसा कंफ्यूजिंग बना देते बस। ओके बेटा, रिवर, लेक, रेन, ठीक है ना बेटा। अच्छा, मैं रिवर से पानी निकालूंगा, लेक से पानी निकालूंगा, और इससे सबका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही होगा ना। कुछ चेंज होगा क्या? पानी का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा ना, बस। अब यहाँ पे देखो, तो आई कैन प्रिपेयर वाटर इन लैब आल्सो। सब जगह पे whenever I'll take this, so the ratio will be what, one and the same, ओके। तो अभी बेटा इनका अगर मैं मास लूंगा तो बेटा क्या होगा मास इसका, हाइड्रोजन का बेटा बोलो। हाँ, हाइड्रोजन इज 2 and oxygen is how much बेटा? 16. So if I take the ratio, then it will be always a whole number. It will be always a, I can prepare carbon dioxide by various way or not, tell me. कार्बन डाइऑक्साइड मैं कैसे बना सकता बोलो बेटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके भी मुझे क्या मिलता था? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज माय सेकंड एग्जांपल। एंड इफ आई हीट कैल्शियम कार्बोनेट, देन आल्सो आई कैन गेट कार्बन डाइऑक्साइड। अभी दोनों में मुझे क्या मिला? कोई भी कंपाउंड मुझे लाइफ में मिलेगा, उसमें बेटा जितने भी एलिमेंट है उनका रेशियो क्या होगा? हमेशा बाय मास। इट विल बी, कार्बन का कितना होता है बोलो बेटा? 12। ऑक्सीजन कितना है? 2। 2 का कितना होगा? 32। इनका इट विल बेयर अ सिंपल whole number ratio. This is what he said, simple whole number ratio. Simple whole number ratio of different element of, ठीक है, राइट। अच्छा अभी मैं तुमको एक मिनट इधर पे आ जाओ, स्टेटमेंट पढ़ लो फिर आपको समझेगा, इधर आ जाओ। A given compound always contain exactly same proportion of element by, एक ही कंपाउंड मैंने देख वाटर पानी से निकाला, रिवर से निकाला, सी से निकाला, यहाँ से निकाला, लैब में बनाया, सब में सेम ही रहेगा उसका रेशियो। कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंट मेथड से बना होगा तो रेशियो क्या रहेगा? वन एंड द सेम। वो लोग ने एग्जांपल बहुत अच्छे से नहीं दिया, मैंने तुमको जैसा एग्जांपल दिया ना वो फटाफट कर लो एक, चलो फटाफट ऐसे खाली लिखो नहीं। एग्जांपल 1 था और तुम्हारा एग्जांपल 2। अरे दिस, in first I took what? Water from all these sources. The ratio of their element will always bear a simple whole number ratio. Secondly, what I took बेटा, फटाफट देख लो बेटा, पानी।
Okay. The guy was legal casting and he's like, I'm still examining it. He's full of- Next study. Next law. Next law will do. Hey, hello, done. How was your cascade and all? We are going on. Because We have to ask it. now, when? Again, That was Asha, that was not. so when it is yours now? 10th of August. 10th, the Saturday again? Yeah. दिमाग खराब मत करो बे क्योंकि देख 15th अगस्त को तो वैसे भी मैं छुट्टी दे रहा हूँ because 15th अगस्त we are not working, Thursday it is coming. हाँ इंडिपेंडेंट है obviously. हाँ चलो बेटा आ जाओ आगे बढ़े. हो गया सबका है अभी डन. कब है रक्षाबंधन? Yeah. Okay. Yeah. Hello all of you. Now. Law of multiple proportion. This is something new, हाँ बेटा. This is very important. ये अच्छे से समझो बेटा. जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो देखो बेटा. Law of multiple proportion. डेफिनेट हो गया अभी मल्टीपल है. Okay. Now it is very simple. Hello, listen, look now. I'm giving you first example. मैंने क्या किया पहले देखो अच्छे से बेटा. कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया and I got carbon monoxide. I got what? This is partial combustion I did. What combustion I did? Partial combustion. अच्छा वो बैलेंस करना है तो ये कर देता यार. No. Yeah. I know you had and all. Yeah. Better. Now I am doing second में क्या? What I am doing? Carbon plus oxygen. I am doing complete combustion. Now what I want all of you to focus on this part. ये वाला part देखो. अच्छा. In this, which two different elements are here? Two different elements. नहीं हाँ carbon monoxide and carbon dioxide तो है. Which two different elements are here? And two मत देखो. Balancing वाला part आप मत देखो. What is there? Carbon and oxygen. यहाँ पे भी क्या बेटा? Carbon and oxygen. अच्छा. Now listen carefully. If I get two compounds, both of them have what? Same element. Don't look at the number of elements. Both of them will have what बेटा? Same element. बस इतना दिमाग में गया. अच्छा उसमें भी एक चीज होगा बेटा. One element will be fixed and another one will be changing. इसमें fix कौन है बोलो बेटा इन दोनों में? अभी मैं ना इन दोनों को यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ बेटा. यहाँ पे देखो. What I was having carbon monoxide and here what is there बेटा? Carbon dioxide. अभी इन दोनों में fix कौन है बोलो बेटा? This is fix. This is also fix ना बेटा? And who is changing? ये दोनों तुम्हारा. अरे यार कलर चेंज करने का था मुझे. Sorry. These two are what बेटा? Changing. जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही करना बेटा. मैं आपको बता रहा हूँ. पहले एक बार देख लो. बेबी these two are changing ना बेटा. तो अभी यहाँ पे कितना हुआ है बोल बेटा? अरे इसका वो 1 है. इसका वो कितना है बोलो? 2 हो ना बेटा. सो उनका रेशियो कितना होगा बेटा बोलो ना बेटा? 1:2. सिंपल ना बेटा. अगर मैं इसका वेट भी लेता तो मुझे वेट इसका कितना मिलता बोलो बेटा? 60 और इसका कितना मिलता? 32. सो इफ आई टेक द रेशियो व्हाट आई विल गेट ऑलवेज 1:2. सो मतलब जो चेंज होने वाला है. ओके जगह कम है यहाँ पे. दैट इज यहाँ पे लिख दो ऐसा. दैट इज 1:2.
बाय वेट, हाँ बेटा, बाय मास या बाय वेट, जो भी लिखने का। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? लिसन केयरफुली। If there are two different compound containing same number of element, same element है, अच्छा, if two compounds made up of same element, two compounds made up of same element, and if one of the element is constant, then the other one which is changing will bear a simple whole number ratio. Easy? No. This. Who is changing? The one who is changing. They will bear a simple whole number. सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी अभी है ना बेटा, अभी यहाँ पे देखा, वन ऑफ देम इज फिक्स। हाँ ना, इधर पे आ जा। वेट सी दिस, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो नहीं आएगा। दे हैव गिवन ऑल वेट एंड ऑल। देख बेटा, अभी खाली स्टेटमेंट पढ़। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एलिमेंट सेम था ना, सी और ओ था, एक में सीओ बना और एक में क्या बना, CO2। अरे मतलब यहाँ पे मैं तुमको बता रहा, एक में ए बी बना और एक में क्या बना, AB2। बराबर है, समझ में आता है? ओके, द masses of B, the masses of B, क्योंकि वो B चेंज हो रहा है ना बेटा। Now try to understand this. Hello. Okay. Now try to understand it. The masses of that are combining with given mass of A. A अपना फिक्स था कि नहीं बोलो? ये वाला अपना क्या होना चाहिए? Are always in the ratio of whole number. Understood? मैं पहले ये स्टेटमेंट पढ़ाता था तो कुछ नहीं समझ में आता, तो वो एग्जांपल दिमाग मेरे कभी आया कि नहीं बोलो? ओके, सो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू, चलो आ भी जाओ यहाँ, ले बेटा। तुम लोग में से कोई पोदार में नहीं है ना? पोदार वाला कोई नहीं? दोस्तों पोदार, श्रुति दे रहा है गौरी भाई, देता है कि नहीं? ये नहीं समझा क्या? खराब मत करो। अभी तो खाली अल्फाई वाला पार्ट करवाना है। ये कॉलेज का टाइमिंग है मेरी भाई? नहीं आपको 3 बार बोला। नहीं, अरे अभी आया क्या वापस है? वो सेम ही रहेगा, कॉमर्स स्टार्ट हो गया, कॉमर्स और टाइमिंग है 11:30। तो उन लोग के लिए 1 आप हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हर डिवीजन का टाइमिंग अलग है, लेकिन मेरे को खाली स्टार्टिंग टाइमिंग क्या होने वाला है? वही अलग है। एंडिंग टाइम नो इट्स गोना बी द सेम वे 15। No, it depends हाँ। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट का अलग रहेगा, इसका अलग, प्रैक्टिकल टाइमिंग्स आर डिफरेंट एंड ऑल। नो, बट वन थिंग इज दैट ओके, किसी का भी 11 के बाद ही स्टार्ट हो रहा है ना, ये नहीं ऐसा तो नहीं ना? बस 11 के बाद। हाँ बस, तो अरे लोग तो पहले और 11 yeah start at 1:10 and they end usually by 6:20 एंडिंग का मत बता। so then it's starting at 11 yeah the No, because if you have practicals, then they will call you early 11:30 or something like that. बस that's kind of cool. Okay. Hey. Now MCQ में इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? They will give you compounds. Listen बेटा, they will give you, अच्छा उसमें भी वो लोग कभी कभी ऐसा स्मार्ट प्ले करेंगे। Whenever MCQ come based on this, you know, and they will tell you whether it supports law of multiple proportion or not. Multiple की बोला पता है कि जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों, ये तुम समझा ना बेटा that statement, or have you understood properly? Okay, चला जाए बेबी, थैंक यू। ए ही बेटा सो रहा है क्या? सो ही रहा है तू? हेलो हेलो, देखा? नहीं सो रहा सर, नहीं सो रहा। नहीं सो रहा? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, चले प्रणव, आज अरे हो गया ये कॉपी करके? चलो मैं आपको ना ऐसा कंपाउंड दे रहा चल मस्त। एक ना सुनो बेटा, ये ऐसे ही खाली है, तुम लोग देखो, स्वाति और दोनों जन देखो अच्छे से।
मैं आपको ये कंपाउंड दे रहा हूँ, मैं बोलूंगा चलो इस पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेट होगा कि नहीं, तो आप देखोगे बेटा तो आप बोलोगे सर सब चेंज हो रहा है ना, लेकिन फिर भी अगर मुझे हाँ सब, लेकिन तो कोई भी फिक्स है क्या, नहीं है ना एक में भी। तो हमको ऐसे टाइम में क्या करना है पता है क्या बेटा, एक को फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक को। तो हम देख रहे 2 और 5 इसको तो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते, तो अब कैन आई फिक्स एन एटलीस्ट, यस। मैं एन को क्या कर सकता हूँ बोलो बेटा, ये वाले को क्या ये, अच्छा मैं पूरे को क्या करूंगा बोलो बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 नहीं बेटा, एक मिनट बेटा, एन, हाँ मैंने एक रॉन्ग दिया, वेट 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 वेट, क्या दिया तुम लोगों को मैंने, NO2 NO2 NO2, हाँ सॉरी पूरे को नहीं, किस किस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हाँ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 2 से, ठीक है ना बेटा, तो क्या मिल जाएगा बोलो, हेलो, N2O2, ये तेरा N2O ही रहेगा, इसके ये क्या हो जाएगा O4, और ये तेरा क्या हो जाएगा, हाँ अब बेटा मेरे को बता ये तुम्हारा फिक्स हो गया कि नहीं बोलो, दिस पार्ट बिकम फिक्स्ड और नॉट, टेल मी। नाउ यू कैन टेक द रिमेनिंग, तो ये O कितना है ये 2, ये कितना है 1, दिस O इज हाउ मच, दिस O इज हाउ मच, व्हाट इज द रेशियो, 2:1:4:5, समझ में आ गया, क्लियर है। कभी ऐसा आएगा तो एक को फिक्स कर देने का, इजी ना, अरे मतलब लॉ, हाँ इनको टू को कम हाँ ठीक है, चलो दिस इज डन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। फिर हाँ देख अभी ये लोग ने ना ऐसा एग्जांपल दिया, तुमको कुछ समझेगा नहीं बेटा, ये लिसन लिसन लिसन, आई विल टेल यू, दे लुक हियर बेटा, यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया है वाटर, और यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया हाइड्रोजन। चलो बेटा दोनों में कौन फिक्स है, ए दिव्या बता मेरे को कौन फिक्स है, इकड़े बग इकड़े बग इकड़े बग, H2 फिक्स है ना, तो चेंज कौन होता है, हाँ तो इसका रेशियो कितना होगा बेटा, ये 1:2 है, तो क्या होगा 1:2, हो गया ना, देख यही लिखा है वहां पे नीचे देख, अरे वो लोग ने बहुत पकाया है, देखना बेटा 1:2 आया कि नहीं बोलो अपने को आंसर। अच्छा अभी नेक्स्ट वाला देख क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या दिया तेरे को NO2, तो ये फिक्स है ना बेटा, तो चेंज होने वाले का रेशियो कितना होगा, समझ में आया, कंपलसरी फर्स्ट वाला ही फिक्स होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है ना, तू सेकंड वाला मैं तेरे को जो एग्जांपल दूंगा उस पे, ठीक है कि नहीं, ये ले, ये फिक्स है तो ये दोनों का क्या रेशियो होगा बोलो बेटा, ओके एक्सक्यूज मी, चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। Now, beta, this Gay-Lussac's law I'll do later on, because we have numericals based on this Gay-Lussac's, wherein we need to know what is limiting reagent, and they may tell you to find number of moles also. तो Gay-Lussac's में आता हो, Gay-Lussac's करने से पहले मैं बेटा डायरेक्टली तुमको कहाँ पे लेके जाऊंगा, this Avogadro, what it is, Avogadro. अच्छा पहला, अच्छा Gay-Lussac's का सम्स दे, मैं खाली इंट्रोड्यूस कर देता, what is Gay-Lussac's law, ओके, Gay-Lussac's लॉ में खाली तुमको इंट्रोड्यूस कर देता, Gay-Lussac's भी था तुम लोगों को, Gay-Lussac's law is only for gases, only for gas, only for gases, ओके। Gay-Lussac's law क्या बोलता है बेटा, इफ आई गिव यू, खाली आप समझो बेटा, एग्जाम्पल में दूंगा उससे आपको समझेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, चलो गौरी बेटा आई हैव रिटन हाइड्रोजन क्लोरीन एंड दिस इज आल्सो व्हाट गैस, ठीक है ना, सब गैस है, याद रखना, गैस को ही हम लोग लेंगे, सॉलिड और लिक्विड होगा तो हम लोग लेंगे नहीं। चलो गौरी बेटा फॉर बैलेंसिंग मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 2, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 1 है, तो ये लॉ क्या कहता है, इफ आई टेक दिस 1 वॉल्यूम देन दिस विल बी आल्सो हाउ मच 1 वॉल्यूम, एंड दिस विल बी हाउ मच 2 वॉल्यूम, तो इसका अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या मिलेगा 1:2 अभी बेटा मैंने एग्जाम में तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा बेटा, अगर ये 5 लीटर्स होता तो ये कितना होता बोलो बेबी, हाँ 5 ही होता, वेरी गुड, और ये कितना होता बोलो बेटा, ठीक है चलो ये लिख लो फटाफट एक पॉइंट, and what is the law that I'll tell you बेटा, don't worry। अच्छा लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा ना बेटा कि 1+1 इज इक्वल टू 2, ऐसा नहीं है, वो मैं बता देता हूँ, वो हम लोग क्या देखते हैं बेटा, बैलेंस करने के लिए जो हम लोग ने नंबर यूज किया ना, दैट विल बी बैलेंस करने के लिए हम लोग ने जो नंबर यूज किया ना, दैट विल बी यूजिंग, wow, is that on the back,
Black fellow. What's his name? Bio? Bio there. Goa Bio. क्या? This fellow. हुआ भैया। अरे लो आया मैंने ये इधर मिलने के लिए सारी है कहाँ से आती है मेरे को ये समझ नहीं आता है यार ये सर को कितना बोला ये सब क्यों रखा है उन्होंने लकड़ा वकड़ा मेरे को समझ में नहीं आता है मैं ये करा देता है काम बताओ इधर पे वो क्या बोलते हैं नेक्स्ट कंट्रोल अरे ऑल दिस थिंग इज आर्टिसंस का वो बोर्ड मैंने उनको बोला निकाल दो यार अरे वो पहले वहाँ पे ना नीचे उन्होंने ऐसा वो लगाया था वो वहाँ पे फिट करके वो बीएमसी निकाल के गई थी ना तब से यहाँ पे ही रहता है सब चलो आगे बढ़ते हैं पीछे भी दुनिया भर का कचरा रखा है क्यों रखते हैं वहाँ पे फिजिक्स का किसका मैथ्स चलो डन 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 यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी चलो बेटा अभी मैं नेक्स्ट वाला दे रहा हूँ दिव्या तू बता क्योंकि तुम लोग इसमें थे ना इसमें शायद तुम लोग को था कि नहीं पता नहीं मुझे दिव्या हाँ अमोनिया गैस आया कि नहीं बैलेंसिंग के लिए तो क्या लिखेगी यहाँ पर 2 और यहाँ पे कितना आएगा 3 ये सब गैस है ना बेटा इसके आगे क्या है 1 तो इसका कितना होगा 1 वॉल्यूम दिस विल बी हाउ मच तो यहाँ पे कितना बनेगा देखो यही मैं कहना चाहता था कि मतलब यहाँ पे ना ऐसा नहीं हो रहा है 1 + 3 = 4 हाँ ये मैं कह रहा था यू हैव टू सी द रेशियो व्हाट इज द रेशियो 1:2 वेरी गुड अगर मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा रहता क्वेश्चन इफ आई टेक दिस 5 लीटर्स तो ये कितना बनेगा बोलो वेरी गुड और ये कितना बनेगा बस ये सेकंड एग्जांपल ले लो मतलब ये खाली दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए हाँ हाँ वो सब देंगे कैसे समाएंगे वैसा बताओगे ना बेटा टेंशन मत ले ए प्रणव तुम लोग को था क्या गेम शायद This is like the easiest thing. हाँ I don't like Arga. And 6.5. Yeah, 6.5. 8 to 10 raised to 20. It's like I don't like it. The numbers is brand. Yeah I know बेटा Very good. वेरी गुड You remember also like similar song in the bowl? Yeah, yeah, so was it 10 or something? It was 10 or 10 or something. I was like, wait, why is it so simple? And then I answered it. कहाँ पर आगे एक क्लास है Yeah, exactly. अल्फा मिस करके दिया मिस अल्फा डाली हाँ मिस अल्फा डाली कर हाँ हाँ चलो बेटा डन 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 ओके डन 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 हेलो चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में करवाने वाला हूं उस पर ध्यान दो एवोगैड्रो चलो डन ओके तो बेटा यहाँ पे वो लोग ने लॉ देखो लॉ का स्टेटमेंट व्हेन गैसेस कंबाइन और दे डू इन अ सिंपल रेशियो बाय लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ऑल द गैसेस शुड बी एट व्हाट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी प्रेशर ये गेल-लुसेक्स का था अभी अभी आएगा बेटा this ना हाँ ये आओ गधेड़ो जो आओ गधेड़ो आ जाओ equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of ये मैं अभी समझाऊंगा मॉलिक्यूल समझने के लिए पहले तुमको ना एवोगैड्रो नंबर्स जानना बहुत जरूरी है क्या जानना जरूरी है हाँ वो सब बताओगा सब बताएंगे बताते ये लॉ अभी आपको अभी नहीं समझेगा once I do Avogadro this thing then only you'll understand okay so today our main important thing is to know what is Avogadro number and before going to Avogadro number you should know some few basic things what are these basic things that I'm telling you चलो बेटा this law again I'll come back to this law अभी आपको अच्छे से नहीं समझेगा because that equal number of molecules आपको समझेगा ही नहीं यहाँ पर मैं जब बोलूंगा तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये सब पढ़ लेना जिंदगी है स्मॉलेस्ट एटम एंड ऑल दैट
कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये सब जाने दो। हाँ, कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता इसमें से। जो अरे बेटा जो इवैल्यूएटिव पार्ट होगा वही मैं बताऊंगा ना आप लोगों को, टाइम पास चीजें पे हम लोग नहीं फोकस करेंगे। हाँ 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 हाँ, सब है। लॉ लॉ सब आ रहे स्टेटमेंट पढ़ना, ओके। मतलब थियरी के लिए ऑफ कोर्स, इसमें बेटा नहीं आएगा, सीईटी में ये सब नहीं आएगा, ठीक है। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ये आपको यहाँ से बेटा मेन पार्ट अभी स्टार्ट होगा, मतलब ठीक है ना। ओके, आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, डोंट वरी, मास ऑफ एन एटम इज नथिंग बट व्हाट, एटॉमिक मास। हम लोग बेटा ना एटॉमिक मास पहले कैसे लेते थे, ओके। हम लोग ऐसे एज्यूम कर दिया था, साइंटिस्ट लोग ने, कि हाइड्रोजन का मास इज 1। क्यों ऐसे एज्यूम कर दिया था? उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता था। न्यूट्रॉन होता था क्या हाइड्रोजन के अंदर? हाँ, अच्छा, एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर। हाँ तो वो, अरे वो तो सब बेटा दे अरेंज करके पूरा वो लोग ने बनाया था ना बेटा। हाँ, फर्स्ट अरे वो डी ब्रॉगलीज थियरी, वो सब हम लोग ने पढ़ा था ना, विलियम प्राउड। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा वो बेटा, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोजन के अंदर कितना है बोल बेटा? 1 प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली बेटा 1 नहीं होता, इट वाज 1.0078। ऐसा एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या इसको हम लोग डाल्टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन। बट वी अप्रोक्सीमेटली हम लोग ने उसको कितना लिया है? 1 लिया। कितना लिया है पता है? अभी बेटा अगर मुझे किसी और का ढूंढना है, सपोज में ऐसे हीलियम मास इज 4, तो हीलियम इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन? 1 और 4 टाइम्स। मतलब हम लोग ने किसी को स्टैंडर्ड बनाते हैं ना बेटा। अगर मैंने बोला सोडियम इज 23, तो इट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर? 23 टाइम्स हेवियर। कितना टाइम्स हेवियर है? 23 टाइम्स हेवियर। It is how many times heavier? 23 times heavier. But beta, we discarded hydrogen. Why? Because it has isotope. We used to have how many isotopes? 3 isotopes. What is isotopes? Atoms of same element having same atomic number but different mass. So then scientists came up with new idea. वो लोग ने क्या बोला कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, एक कार्बन का वेट कितना होता है तेरे को मेरे को बता, 12 होता है कि नहीं? तो अच्छा, मैंने अगर ऐसा लिखा 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12, बेसिकली अगर तू सॉल्व करेगी तो तुझे क्या मिलेगा? 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 इज हाउ मच? 12 ओनली ना बेटा। हाँ हाँ, अरे बेटा इसका 12 का, इसका तो वैल्यू 12 है ना बेटा। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा? तो अगर मुझे अभी नाउ इफ आई से सोडियम एटॉमिक वेट इज हाउ मच? 23, so it is how many times heavier than this? 1/12 of carbon 12 into 23 करेगा तो मुझे 23 आएगा कि नहीं? अरे यार, हाइड्रोजन में हम लोग ऐसे नाक पकड़ते थे, इसमें हम लोग ऐसा ऐसा घुमा के नाक पकड़ रहे हैं। 1/12 ऑफ कार्बन, बेसिकली मुझे जो स्टैंडर्ड लेना है उसको कितना लेना है? 1 लेना है। कितना लेना है? ठीक है ना। एकदम सिंपल सा मैं बताता, चलो हम लोग इमेजिन करते हैं बेटा, ऐसे यार होता। चलो दिव्यांगना हाइड्रोजन थी बेटा, उसका ऐसे हम लोग करते हैं, उसका मास ही 1 है। कितना है? 1। और त्रिशा बेटा का मास ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं 23 है। कितना है? तो त्रिशा इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन दिव्यांगना? हाँ, कैसा? दिव्या 1 है ना। हाँ, तो 23 टाइम्स हेवियर। कितना टाइम्स हेवियर है? हाँ। अभी बेटा गौरी का मास हम लोग कहते हैं, गौरी बेटा तेरा मास इमेजिन कर ऐसे यार 12 है। कितना है? 12। लेकिन अगर मैंने तेरे को 1/12 लिखा तो तेरा मास कितना हो गया? हाँ, तो अभी नाउ त्रिशा इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन गौरी? इफ आई बट आई एम मेकिंग गौरी का, मुझे अगर 1 यूनिट बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1/12 ऑफ गौरी, राइट ना बेटा? 1/12 ऑफ गौरी इज हाउ मच? 1 ओनली। तो त्रिशा इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन हर? 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ गौरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/12 ऑफ गौरी फाइनली 1 ही हुआ कि नहीं बोलो? तो बस उस लोगों ने बोला कार्बन से कंपेयर कर दिया था। अबे येड़े, कार्बन हाइड्रोजन, वो अच्छा चल रहा। हाँ हाँ, ये मैं समझता। ये 1 है, 1 स्टैंडर्ड था, इसको 23 टाइम मल्टीप्लाई किया तो सोडियम तुम्हारा 23 टाइम्स इज हेवियर देन हाइड्रोजन। नाउ व्हाट इज 1/12 ऑफ कार्बन 12? हाँ सर, कार्बन 12 का वेट कितना है बोल?
हाँ, तो ये कितना आंसर आएगा? तो अगर मुझे इफ आई वांट टू से सोडियम इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन कार्बन 12 देन, but what I'll say, it is 23 times heavier than 1/12 of carbon 12 rather than saying only carbon 12. Okay, this is how we, मतलब वो स्टैंडर्ड यूनिट को उन्होंने कंफ्यूज करवाया तुम लोगों को, ठीक है। नाउ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, अच्छा अभी बेटा ये हम लोग किस पे यूनिट में लिखते थे, बोलो बेटा? ए an atom of carbon 12 was assigned exactly how much? 12 atomic mass unit. AMU means what? Atomic mass. So 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12. अबे 1/12 of carbon 12 कितना होता है बोल बेबी? 1 ही हुआ ना? हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 AMU। क्लियर है? अच्छा, अभी खाली आपको एक नया चीज यहाँ पे याद रखना है। ओके, ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 हम लोग अभी किस में लेने वाले हैं बेटा? एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। 1 AMU इज हाउ मेनी ग्राम्स? ये आपको खाली बाय हार्ट करना है। 1 AMU इज हाउ मेनी ग्राम्स? बस ये खाली याद रखो, बाय हार्ट करना है, बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है। 1 AMU इज हाउ मच बेटा? 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। 1.6 1 AMU is 1.66 into 10⁻⁻। हाँ, no 0.56 मत लिखो, खाली 1.66 लिखो। 1 AMU is what? 1.66 into -24 ग्राम्स। बस इतना याद रखो, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू कन्वर्ट AMU इनटू ग्राम्स और ग्राम्स इनटू AMU। सीईटी में भी आएगा बेटा, ये करना। ये कन्वर्जन फैक्टर अपने दिमाग में फिट करना दो बस बेटा। अच्छा, ये MU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हाट बेटा? डाल्टन, और इसको क्या कहते हैं? म्यू। और क्या कहते हैं बोलो बेटा? डाल्टन टा। ओके, हाँ, सीईटी इज ओनली MCQs, और कुछ नहीं रहता है उसमें, बट कॉन्सेप्ट खाली ये होगा। इट इज इजी बेटा, मैं आपको बताना, सीईटी का बेस्ट एडवांटेज कैसा पता है? कि इट इज रिलेटेड टू अवर दिस ओनली, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। ओके, now this is very important which we are going to use. Now before that, now we will do basic। पहले हम लोग किस में करेंगे बेटा? ग्राम में करेंगे, एटॉमिक मास। अभी चलो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक मास आप लोग ने ऐसा पढ़ा रहेगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। हेलो, आप लोग ने वैसा भी पढ़ा रहेगा, RAM ऐसा करके पढ़ा रहेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव क्यों बोलते हैं उसको? रिलेटिव क्यों बोलते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट? रिलेटिव बिकॉज वी आर कंपेयरिंग विथ हाइड्रोजन और कार्बन 12, वी आर रिलेटिंग इट। अच्छा प्लीज बेटा, ये आपको ना एग्जाम में दिया रहेगा। कार्बन का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो बेटा? 1। ओके, देन बेटा ऑक्सीजन इज हाउ मच बेटा? 16। सोडियम 20। ऐसे ही मैं खाली लिख रहा हूँ रैंडमली। सल्फर कितना होता है? 32। ओके राइट, नाइट्रोजन इज 14, कैल्शियम इज 20। ये सब देंगे बेटा अपने को बाय करने के। कैल्शियम इज 40, सॉरी क्या 20। ओके, नाउ चलो आ जाओ। क्लोरीन के लिए मिलेगी 35 और व्हाट? क्लोरीन का हाँ, क्या है? वो सब मैं बताता हूँ ना, 35.5 और सब मैं बता देता। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। ये रे भाई बस लिख देता, क्लोरीन इज 35.5। वो कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा। नाउ दिस इज मास ऑफ एन एटम इज नथिंग बट एटॉमिक मास। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट? द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट? मॉलिक्यूलर, नहीं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? अभी आपको पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। क्या है? तो ये आंसर में सबसे पहले आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास। हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट आर देयर बोलो? ए, चलो बताओ मुझे। कार्बन है और कौन है? ऑक्सीजन। आई राइट कार्बन एंड देन आई राइट ऑक्सीजन। हाउ मेनी कार्बन इज देयर? 1। हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 2। So 1 into 12 plus 2 into 16
सो आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 44 डाल्टन या AMU जो भी लिखना है 44U। ओके, फिर ले ले पहला सम एटॉमिक मास लिखो, फिर बाद में क्या लिखोगे हेडिंग बेटा, समझ में आ गया ना बेटा? अरे हाँ चलेगा बेटा, एटॉमिक मास तो दिया रहेगा बेटा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास अभी एग्जाम में आपको पहले मॉलिक्यूलर मास ढूंढने को आना चाहिए। ये यूनिट लिख लेना बेटा, ये वन AMU इज 1.66 पूरा आगे का 1.66 लिखा है ना, आप आपको याद है ये सब मैं बता पाएगा यहाँ पे हाँ। Oh, but yeah, I'll do that. I'll do it up only. तो किसी को भी नहीं आएगा। किसी को भी ऊपर कर दिया है हमने, ऊपर ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। टन 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 टन। अभी बेटा ये हम लोग ने जो ये ढूंढा, इसको U जो है बेटा, अरे यार ये U गंदा बहुत दिख रहा है ना, ये U भी बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं AMU भी बोलते हैं बेटा, राइट ना बेटा, और डाल्टन भी बोलते हैं उसको। क्लियर है? ओके अब बेटा ना कभी कभी आपको लोग क्या बोलेंगे पता है क्या, फाइंड दिस मास इन ग्राम, तो क्या करते हैं आप, चलो मैं नेक्स्ट वाले सब में देता था। चलो ओके वेट वेट वेट, अच्छा हाँ बट सेकंड सम अभी ए, और किसका भी आपको ढूंढने का बोलो बेटा, H2 सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट दे विल आस्क यू, सल्फ्यूरिक एसिड इन, बेटा मैं ऐसा भी बोलूंगा इन U एज वेल एज इन AMU एंड इन ग्राम। तो कैसे करोगे बेटा आंसर, तो पहले मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको क्या आना चाहिए बोलो, हेलो, कितने अलग अलग, हाँ तो पहले आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक H2SO4 फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके हाँ, तो H कितना है, हमनी H 1H 1 सल्फर एंड हमनी O4, तो 2 into H प्लस 1 into सल्फर प्लस, हाँ तो कितना हो जाएगा, हाँ 98 क्या मिला आपको, ये U मिला। अभी बेटा मैं इसको बोलूंगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या आज पढ़ा था हम लोग ने, बोलो बेटा, हाँ तो 98 इंटू 1.66 इंटू 24, ये तेरा ग्राम में आंसर आ गया, ठीक है। नहीं नहीं बेटा इसको ऐसे छोड़ देंगे, मतलब अभी आपको समझ में आ गया ना इतना कैसे करने का है। वाई वी डिड दिस, हे बेबी ये क्यों आया, one I told you ना that you have read, I hope all of you have written this part which I told you, अरे this was very important। अच्छा चल मैं यहाँ पे रीजन भी दे देता, तुम लोग भूल जाओगे, since 1 AMU that is 1 U or AMU is 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम, बस लिख लो वहां पर, लिख ले बे, लिखा गया बे, ये लिख दे नीचे, वो 1 AMU इज दिस। हाँ बस ब्रेक देता हूँ, बस ब्रेक देता हूँ, बस चलो ब्रेक देता हूँ 5 मिनट का, ठीक है ना, पॉज करने दे मेरे को रिकॉर्डिंग। ओके now this is very important, most of you have already studied, we are okay, whenever I say to you all, you know, whenever I say 1 dozen of banana, हाँ ए भाई 1 dozen banana मतलब 1 dozen banana मतलब कितना बनाना, हाँ 1 dozen pen means how many pen, हाँ मतलब dozen means what comes to your mind, 12, a fixed number comes to your, okay, so total quantity comes to your mind is what, 12। Similarly बेटा if I say, जैसे हम लोग डजन बोलते हैं तो 12 आता है ना आपके दिमाग में, तो वैसे अगर मैं बोलूंगा एवोगाड्रो नंबर, बहुत बेटा एवोगाड्रो नंबर, तो व्हाट शुड कम टू योर माइंड, 6.023 into 10 raised to 23, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट बेटा, इधर गया अपना, हाँ वो गधेड़ो क्या गया, हाँ वो गधेड़ो, ये लोग ने आप लोग को 22 दिया है, तुम लोग अभी यहाँ पे तुम्हारा ICC में 23 था, हम लोग 22 ले गए,
इट इनिशियल 6.022 ले 02 खाली याद रहेगा तो भी याद रहेगा 023 भी ले सकते हैं राउंड अप हाँ तो यू टेक दैट ओनली बेटा हाँ 0 to 3. I'll show you बेटा don't you worry yeah where it is हेलो या ए हीट बेटा दिखाई दे रहा है ना ये हाँ चलो बेटा ये लिखो पहला डजन जैसे 12 होता है वैसे एवोगैड्रो आएगा तो 6.023 into 10 या 6.022 भी लेते हैं बेटा तो आपके इसमें एचएससी में 22 लिया है Same. It'll be the same. मिक्स But it won't मिक्स start मिक्स marks. ना नो 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 बेटा चाय कहाँ पे रखे चाय पीना है किसको बोलो फटाफट नहीं तो कोई ना थी चलो चलो हो गया ये बेटा चलो अभी आगे बढ़ते नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना 4 रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट सपोज इफ आई टेल यू हेलो ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बस ये मैं आपको बता रहा हूँ ये लिखा से नहीं करो हाँ, बस अच्छा ये सुन बेटा एवोगैड्रो का मतलब क्या हुआ सुने इफ आई से एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन सो हाउ मेनी पेन्स 6.022 into 10 raised to 23 pence एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोन सो हाउ मेनी फोन्स 6.023. समझ में आ गया ना एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉटल्स मींस हाउ मेनी बॉटल्स अभी समझ में आ गया बस मतलब जैसे एक डजन को अपन 12 बोलते हैं वैसे इसका मतलब ये होता है अब उसने क्या किया अभी सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या दिया 1 मोल दिया क्या दिया 1 मोल मैंने आपको ये पेन दिया आपने फिर उसका वेट निकाला तो 1 मोल क्या होगा उसी का मॉलिक्यूलर वेट होगा क्या होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन यू पुट उसका वेट मैंने से वेट किया तो उसको मुझे कितना मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा क्या मिलेगा फिर 1 मोल मैंने आपको 1 मोल पेन दिया आपने उसका वेट किया तो इट विल बी हमारे मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको 1 मोल ये पेन दिया है सर फिर आप काउंट करोगे 1 मोल पेन के अंदर आपको कितनी पेन्स नजर आएगी हाउ मेनी पेन्स 6.023 into 10 raised to 23 पेन्स फिर आप है ना वो पेन को ऐसा मतलब एक बॉटल में भरोगे मतलब ये गैस है इमेजिन करना इसको मैंने वाटर में भरा तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर और सेंटीमीटर और डीएम की वर्क ये लास्ट वाला पार्ट किसके लिए आएगा ओनली फॉर गैस अगर ये गैस नहीं होता तो ये आता क्लियर है ओके अच्छा अभी सुन बेटा इसका मैं एग्जांपल भी देगा बेटा सुन ले बेटा इफ आई गिव यू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस तो इफ यू पुट इट ऑन वेइंग पेन ऐसे ही मैं बता रहा हूँ वेइंग पेन तो व्हाट विल बी हाइड्रोजन मींस H2 एक H का वजन 1 होता है तो कितना होगा उसका तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन करस्पॉन्ड्स टू 2 ग्राम कितना समझ में आया अच्छा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने दिया पहला सुन लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपने दिया और आप काउंट करोगे आपको कितने अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे 6.0 अच्छा उतने हाइड्रोजन को आप एक बॉटल में डालोगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी याद रखो अगर एसटीपी में नहीं देगा तो वील हैव टू कन्वर्ट दैट तो अच्छा अभी बेटा एग्जाम में सब में ये 4 चीजें आएगी बेटा मैंने ऐसे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मोल अरे वेट लिया मतलब मास ये कुछ नंबर है कि नहीं बोलो और लास्ट में क्या है एग्जाम में भी सम कैसे आएगा पहले ये कॉपी करो या आई वांट यू टू कॉपी दिस सर ये फिक्स है हाँ ये फिक्स रहेगा पूरा ये लाइन पूरा फिक्स होगा अरे बेटा उल्टा भी नहीं बोल सकता हूँ तेरे को ये सुन बेटा ये गौरी बेटा इफ आई गिव यू रिले ये 22.4 लीटर ऑफ मैंने क्या दिया तेरे को हाइड्रोजन अभी तू इसको खाली करेगी देखो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे हाँ इसी को तू इसका वेट निकालेगी तो वेट कितना मिलेगा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा और वो सब मिलके कितना होगा 1 मोल Are you getting it? Hello. You can use the margin also while writing बेटा अरे यार ऐसा तो ये यहाँ से तू लिखना स्टार्ट कर सकते ये मार्जिन भी ले लेने का बेटा लास्ट वाला कब आएगा जब तेरा अच्छा वो 4 लिखो है ABCD जो मैंने नीचे लिखा है ना हाँ हाँ ये ना मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट अगर एटम दिया रहेगा तो एटॉमिक
ठीक, तुम लोग को मॉलिक्यूलर वेट ही देगी जरूर, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ये मैं बताऊंगा तुमको, एटम्स आयंस और पार्टिकल्स को क्या होता है मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, सब पूरा एक एक एग्जांपल डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये धैर्य, ठीक है ना? हाँ ध्यान दे बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, तुमको तो था बेटा, तुम लोग भी जाओ है, मोल गाना तुम लोग को था ना, लेकिन अभी सम सॉल्व करने गया था हम लोग ने सम सॉल्व किया। कैसे ये रिलेशन में किए थे कि फार्मूला में किए थे? सब हाँ ये ऊपर मान लो आ गया। अच्छा हाँ ये I met him yesterday only when I was going back. Yeah, I was walking. चलो बेटा आ जाओ अभी, नाउ 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 नाउ, ए जीत वापिस अभी आया। चलो ये कॉपी किया, अबे सुन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अच्छा दिव्या बेटा देखा अच्छे से, मोल मास नंबर ये। अब बेटा मैंने तेरे को क्या दिया, गैस दिया, 1 मोल हाइड्रोजन, क्या दिया है? अच्छा एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। चल बेटा दिव्या 1 मोल क्या दिया मैंने तेरे को, हाइड्रोजन। अच्छा कभी भी बेटा मैंने गैस दिया रहेगा तो इट विल बी ऑलवेज मतलब हाइड्रोजन होगा तो H2, ऑक्सीजन होगा तो O2, नाइट्रोजन होगा तो N2, क्लोरीन होगा तो Cl2 लेना, Cl अकेला नहीं लेना। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मोलार मास तू कैसे निकालेगी बोल बेटा, कितने हाइड्रोजन है? हाँ तो 2 × H, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, तो 2 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? अच्छा इसके अंदर तेरे को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 2 ग्राम, तूने वेट किया कितना मिला उसका 2 ग्राम, उसके अंदर तेरे को कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे बोलो? ये हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैंने तेरे को ऐसा पूछा हाइड्रोजन एटम्स कितने, सुनो हाँ बेटा अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन एटम कितने एच है इसमें बेटा, तो बस यहाँ पे जो नंबर रहेगा ना उसको खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना इसी से, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिसिटी, मल्टीप्लाई बाय इट्स, समझ में आ गया? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था और ये हाइड्रोजन एटम। अच्छा दिव्या इसको तू पूरे को ऐसा कंटेनर में भरेगी एट एसटीपी तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो? अब मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, इफ आई गिव यू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन और तू खाली कर, तेरे को कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे? 6.023 इंटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। फिर उसी को तू पूरा वेट करेगी तो वेट कितना आएगा 2 ग्राम, और वो सब मिलके कितना बनेगा 1 मोल। अब जा रहा है दिमाग में, ये धैर्य फोन बाद में देख रहे, ये कॉपी करो, चलो कॉपी कर, ये वाला एग्जांपल कॉपी कर लिया इतना फास्ट तूने भी, तुम लोग करते कब है कॉपी ये सब? अरे ये क्या, व्हाट व्हाट व्हाट, ऐसे क्यों हुआ एरर? ये कॉपी किया गया ये वाला पार्ट, चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ समझा ना बेटा ये? चलो एग्जाम में आपको कैसे सम आएंगे, 1 मिनट खाली सुनेगा क्या? गौरी बेटा देख नहीं इधर इधर, ओ बेबी ये देख, I'll tell you, either they will ask you between A और B के बारे में सम पूछ सकते हैं, मतलब A और B का ही पूछेंगे, या फिर क्या पूछेंगे A और या तो फिर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं B और एंड B एंड लास्ट में क्या आएगा C एंड B। क्लियर है? इतने टाइप के सम्स आ सकते हैं। इसका फोटो क्या लेने का? अरे मैं भेज दूंगा, पूरा शेयर कर दूंगा ग्रुप में, हाँ अरे पूरा ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेंशन मत ले पीडीएफ। चल बेटा अभी आ गया है, इधर आ जा हीरो, धैर्य बेटा 1 मोल ऑफ CO2 बोला तो 1 मोल विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट में कैसे करेंगे बेटा, एक सी है देख ले गौरी बेटा, दिव्या देख रहा है ना बेटा, तो 44 ग्राम। अच्छा इसके अंदर ये CO2 क्या है तेरा पूरा मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो 6.02 इंटू 10⁻², मतलब ये CO2। C कितना है अंदर, 1 मिनट सुन लो ना एक बार, C कितना है अंदर, तो बस इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा ये नंबर,
O कितना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, अब समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको हम लोग कंटेनर में भरेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। वेरी गुड, चलो ले लो। अरे आ भी जाने भाई। Yes, dear. What are you struggling with, dear? What's... तो भी आप बोलोगे सर आपने एटम्स बता दिया, मॉलिक्यूल बताया, आयन क्यों नहीं बताया। आयन पहले मेरे को बताओ, सोडियम क्लोराइड। अच्छा चल पहले कॉपी। डीएमक्यू और लीटर, अरे बेटा हाँ वेरी गुड बेटा, ये बहुत अच्छा। बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग, सो सॉरी ऑल ऑफ यू, प्लीज पे अटेंशन बेटा, ये सब में वही आएगा। लुक 1 लीटर इज आल्सो 1 डीएमक्यू, ओके। So instead of liter, I can write DMQ. Or if I want to convert this into centimeter cube, then it will be how much, beta? 1000 centimeter cube. So that is why if you see in the beginning, I have written all this thing, beta. Look here, liter. Or look, dear. Kunark, beta. Look here. This and this entire thing is one and the same. चलो कुनार्क, अगर मैंने अभी तुमको बोला, ये हो गया कॉपी सबका। अभी मैं तुमको एक सॉल्ट देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? सॉलिड। क्या दूंगा बे? हाँ सॉलिड। तो सॉलिड में बेटा तेरा गैस, हाँ तो गैस तो नहीं आएगा, तो वॉल्यूम आएगा क्या? अरे बेटा एसटीपी पे आएगा क्या? तो ऐसा हाँ, एसटीपी पे आएगा क्या? हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि दिस इज ओनली फॉर गैस। अच्छा, अभी हम लोगों ने एटम्स कर दिया, मॉलिक्यूल्स भी कर दिया, अब बचा कौन है? आयन। अच्छा, अभी देख बेटा, ये सपोज बेटा अगर मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा रहता, तो सोडियम और क्लोराइड में सोडियम क्या होता है? आयन। क्लोराइड क्या होता है? आयन। तो अभी MgCl2 मैंने दिया, ये इकड़े बगरे राजा। तो ये वाला पार्ट आया नहीं, क्यों नहीं आया? सॉलिड है, सॉलिड में हम लोग का गैस आएगा। चलो बेटा 1 मोल ऑफ MgCl2, तो Mg का वेट बेटा कितना होता है? 24, और 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35। ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? हाँ अरे तो 2 है ना बेबी। ए सुनना बेबी, 1 मोल MgCl2 मैंने दिया, तो आप उसको वेट करोगे तो कितना वेट आएगा? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, MgCl2 का पूरे का MgCl2 का पार्टिकल्स कितना होगा? 6.023। लेकिन MgCl2 में Mg का आयन कितना है बोल बेटा? अब समझ में आया? ये आयन पहली बार आ रहा है कि नहीं बोलो? Mg2 प्लस आयन लिख दो आगे। एक क्लोरीन के कितने आयन है? हाँ तो क्लोराइड तो इसको देख 2 से मल्टीप्लाई किया, समझा ना बेटा? हेलो, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग आयन, एंड दिस वाज द एंटायर मॉलिक्यूल ना बेटा। And why nothing has come here? Because this is solid, so it won't have, volume वाला part. मतलब for HTP वगैरह हम किसके लिए लिखे थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस। ओके, और वो लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता था? गैस के लिए। समझ में आया क्या? Oh my God, that is lot of hair fall running so much. Oh, you have to use that Adivasi tel. Nowadays, lot of remember that guy? He always says this. आता है इतना hair आता है. All this is उल्लू बनाने का तरीका. Maybe genuine also, you never know. रोजमेरी यूज करने का, चुपचाप पैराशूट यूज करो। चल बात, इट्स बेसिकली योर डाइट। मेन डाइट तुम्हारा अच्छा डाइट हो, विटामिन ई वाला अच्छा डाइट लोगे तो अच्छा उससे हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। ये हो गया, दिमाग में फिट हो गया, सबके फिट हो गया।
अब हम लोग न्यूमेरिक, अच्छा वो आयन आपने लिखा कि नहीं? अब अंडरस्टूड है बेटा, आयन दैट यू विल नो ना बेटा। अभी सम करेगा दिव्या, मैं तुम लोग से ही करूंगा, दिव्या और गौरी से पहले। हाँ आ जाओ, चलो दिव्या स्टार्ट करो। पहला सम, हाँ मैं जो पहला करा फिर मैं टेक्स्ट बुक के बाद में बताऊंगा, पहला आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। पहला सम पढ़ो गौरी, क्या दिया है? गौरी नहीं, दिव्या, व्हाट इज गिवन? देखो सुन लो, सब लोग देखे गए। ए फाइंड व्हाट इन 4 ग्राम। अभी तेरे को एक पहला दिमाग में इतना तो समझ में आता है, यहाँ पे क्या पूछा है अपने को? मोल, बरोबर है। और ये ग्राम में क्या हम लोग मेजर करते हैं? मास ना। तो कौन सा रिलेशन यूज करेगी? मोल और मास। अरे बेटा आज हम लोग मोल और मास का रिलेशन यूज करेंगे कि नहीं, देखना मतलब ने क्या बोला ये देखो। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको? ए और बी, समझ में आ रहा है? लेकिन उसमें भी तेरे को पता है 1 मोल होता तो क्या होता, देखना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 होता। तो बेटा कैसे करने का देख लो। हाँ अरे हाँ, तो ये देखना मोल और मास। अरे बता रहा हूँ ना भी बेटा, तू क्या ये कॉपी कर रहा है अभी तक? हाँ तो फिर बस अभी सब, अरे देखना भाई, 1 मोल एंड मास। 1 मोल होता तो क्या होता? मॉलिक्यूलर वेट। और किसका होता? H2 दिया है ना, तो 2H, और ये 1 देंगे वो लोग बेटा। तो कितना मिला? 1 मोल होता तो कितना होता? अभी पूछा कितना है? तो 4 ग्राम होगा तो कितना? अरे क्या हो गया गौरी, ये देखना। अरे गौरी नहीं, क्या मैं बोला, दिव्या ये देखना। अरे 1 मोल 2 ग्राम होता है कि नहीं बोलना। तो 4 ग्राम होगा तो कितना? हाँ समझ में आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो टेक डाउन। यू गॉट इट? आ रहा है कि नहीं ये किया था? चल अभी तेरे को पूछ रहा है नेक्स्ट। नहीं नहीं, गौरी को करने दे बेटा, गौरी को करने दे तेरे को। डन 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 डन। चलो आगे बढ़ जाओ। गौरी बेटा आ जाओ। क्या बोला है मैंने? बोल। फाइंड, और क्या दिया यहाँ पर? हाँ तो तेरे को दिमाग में क्या आ रहा है? कौन सा मास दिया और क्या दिया है? तो हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? मोल और मास। जब 1 मोल होता तो क्या होता बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट होता था कि नहीं? और H2 का तो H पता है, तो कितना होगा बोलो बेटा? 2 × H, तो 2 ग्राम, बराबर है। अब कितना मोल दिया है? तो 1.5 मोल होगा तो कितना? हाँ बस हो गया ना। ओरली भी कर सकता है कि नहीं बोलना भाई? क्लियर है? तो चलो करो अभी ये। अंकिता शाह कौन है रे? अंकिता शाह किसके है पेरेंट? नहीं ना, तारे मम्मी नु ना तुम्हारा शुरू से इधर नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा नहीं सर, मुलानी नहीं। हाँ शाह, तुम लोग दोनों शाह शाह हो ना? हेलो। ए चलिए त्रिशिया, नहीं त्रिशा ना हाँ। ए स्वाति आ जा बेटा। चलो चलो, क्या दिया बोल? फाइन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर, और क्या दिया तेरे को? मोल।
दिमाग लगाओ, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ो क्या था, अरे ABCD में क्या दिया था बोल। हाँ, मोल दिया यहाँ पर, दिव्या मोल दिया और क्या दिया है, नंबर पूछा है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, मोल एंड नंबर। याद आ रहा है कि नहीं, 1 मोल होता तो कितना होता, हाँ 6.02, तो अभी कितना मोल पूछा है, हो गया, कितना इजी था। हाँ बस ऐसे ही रखना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इजी है, चला जाइए, ये सबका पीछे देखो आ रहा है ना बेटा, प्रणव ये था ना तुम लोगों को, सिमिलर, सिमिलर यही था बेटा। लेकिन ये तेरे को अभी दिमाग में ABCD याद रखना बस। चला जाए, ए नव्या, So it's now. नाव्या, ओके, अले क्या पूछा पहले, पहले सब, हाँ वॉल्यूम और क्या दिया है, अरे बेबी तने तो पूछो, हाँ आंसू छे वॉल्यूम, और ये क्या है, ग्राम में क्या होता है, Mass. हाँ तो कौन सा रिलेशन यूज करेगी बोल, The 22.4. हाँ बट नहीं, बट मास एंड वॉल्यूम, सर BD हाँ BD, वेरी गुड बेटा, BD समझ में आया ना। तो 1 मॉलिक्यूलर मास होता तो कितना वॉल्यूम होता, समझ में आ रहा है। अरे गौरी बेटा आ रहा है बेटा, हम लोग क्या किए, अच्छा गौरी ये देख, ये तेरे को लिखा है क्या दिया है, मास है कि नहीं बोल, यहाँ पे पूछा क्या है वॉल्यूम, तो मास मतलब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वो 1 2 4 आगे रखना बेटा, ये बस पहला वाला किधर है आगे। अभी मैंने तेरे को ABCD बोला था, इसमें से क्या क्या दिया, मास दिया और क्या दिया है, तो तू खाली क्या लिखती, मॉलिक्यूलर वेट होता तो कितना होता, बस समझ में आ गया ना। तो हाँ, फिर वो लोग ने दिया कितना है, हाँ तो 22 होगा तो कितना, समझ में आ रहा है ना बेटा, कैसे करना है दिव्या। ये दिमाग में आ गया तो हो गया बेटा, तो खाली ABCD याद रखना है बस, फटाफट होगा सब। यूनिटरी मेथड है ये। या यूनिट लिख दे बेटा, लीटर दिया, लीटर, हाँ लीटर दिया कि जो लेना है ले, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। आया ना बेटा, ये किया था ना बेटा, याद है, यही मेथड से किए थे ना, लेकिन ये सब किया था क्या इतना इजी स्टार्टिंग का है ना। मैं तो इसमें मोल ही, और कुछ है ही नहीं बेटा। हाँ अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तुम लोगों ने देखो A to 6 किया रहेगा, और क्या था, और कुछ था ही नहीं, A to 6 था, और फिर क्या था वो इक्वेशन में करने का, ये तो हम लोग वो सब करने वाले हैं। ग्राम एटम जो सब इजी है, ग्राम एटम में क्या था, गिवन मास अपन एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूल में क्या, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मतलब परसेंट भी है। वो सब आएगा। चलो चले आजा, ए तू करेगा बेटा, पुनः तू करेगा बेटा, चल क्या लिखा, फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, NH3 सर, हाँ तो क्या क्या रिलेशन है बोल बेटा, ये है हाँ वॉल्यूम ना तो D वॉल्यूम है, D और C वेरी गुड, वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स नजर आ रहा है कि नहीं गौरी बेटा, घुमा पे पार्टिकल, हाँ है देख, देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पे सबने, और ये नंबर दिया है, नंबर मतलब ये ना, हाँ तो बस तो तू क्या लिखेगी, 6.023 होता तो कितना होता, 2.22 देखना, फिर अभी दिया कितना है, 12.0 कितना, समझ में आ रहा है। हाँ वो एसटीपी देना चाहिए, वो लोग एसटीपी अगर नहीं देते बेटा तो देन भी हमको दे विल गिव यू टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन वी हैव टू कन्वर्ट टू एसटीपी। T1 is no, that was gas equation, combined gas equation. If they don't give it STP, this is strictly at STP, they have to give this condition of STP. If they don't give, then we have to convert it. Done. चलो अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आ रहा है तुम्हारे, देख लो बच्चे लोग, आ जाए
अच्छा बेटा अभी देख मैंने ना तुमको ना अभी यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक के सम करेंगे बेटा। देखिए ये मैं तुमको बताना चाहता था। हम लोग कहाँ पर है बेटा, इधर पे पेज नंबर 9 में मोल। 1 मोल कंटेन्स व्हाट, ये देखिएगा ना बेटा, ऑफ कार्बन 12। वो तो ठीक है, चलो बेटा ओके। देन बेटा मोल को ऐसे भी लिख सकते थे, अवागाद्रो कांस्टेंट आ गया। अच्छा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मींस दिस मेनी ऑक्सीजन एटम। ये सब हो गया बेटा, ये सब मैंने बता दिया तुमको ओके। ए भाई, मोलार मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज मोलार मास। ग्राम में अगर हम लोग लिखे ग्राम पर मोल। अच्छा ये O2 का रहेगा तो कितना होगा, 32 ना बेटा। वाटर का टोटल करेंगे तो 18 आएगा कि नहीं। NaCl का कितना आएगा, 58.5। अभी बेटा ना यहाँ पर आ जाता है। अभी ये वाला सम एक नहीं, अच्छे से शांति से देखो बेटा क्या क्या दिया है, पढ़ो बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम। अच्छा बेटा तेरे को क्या दिया है, ग्राम दिया, मतलब क्या दिया तुम्हारे दिमाग में, क्या आएगा बोलो बेटा, मास। मास दिया है और क्या पूछा है वो लोग ने बेटा, Moles. मोल। ठीक है, मास एंड मोल। अभी मैं लिखने वाले में कैसे जाऊं, हाँ आ गया, ये तो अलग आ गया, आ गया हाँ। मास एंड क्या दिया था, मॉलिक्यूल्स ना, मॉलिक्यूल नंबर पूछा है ना बेटा, हाँ। तो बेटा अभी यूरिया का मान लो क्या लिखता, मोलार मास ऑफ, क्या दिया वो लोग ने बेटा, यूरिया। होता तो कितना पार्टिकल होता, 6 पॉइंट, किसका पूछा है वो लोग ने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों है, पहला मोल्स ढूंढना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी बेबी। अच्छा चलो हम लोग ने मॉलिक्यूल ढूंढा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बराबर ना। ओ गॉड, वेट कितने यार। ए भाई मास एंड क्या दिया है, पहला नंबर ले लिया, चले बेबी क्या आएगा, हाँ जो भी 2 2 या 2 3 जो भी इंटू 10⁻23 होता है। तो यूरिया का मास कितना होता है, यूरिया का फॉर्मूला कितना दिया बोल बेटा। देखिए यूरो ऐसा होता है, मैं तुमको बता देता है, एक्चुअली में फॉर्मूला भी चाहिए तो भी मैं बताता, C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कर। ए कौन कौन है अंदर बोलो बेटा, C है, N कितना है 2 है, H कितना है 4 है, O कितना है 1 है। तो आप इसको पूरे को ऐड करोगे तो आपको 60 आंसर आएगा, कितना आएगा, मतलब 60 होता तो इतना होता, तो 5, अभी आप लोग खुद से करना घर पे, तो 5.6 होगा तो कितना। आर यू गेटिंग इट, हेलो, कॉन्सेप्ट समझा क्या। हाँ नहीं लीव नहीं करना है भाई, वो करना पड़ेगा तुमको थोड़ा, लॉग एंटी लॉग लॉग टेबल। अच्छा ये नेक्स्ट क्लास में ना सब लोग लॉग टेबल लेके आना, नवनीत वाला, ठीक है ना। अभी बेटा क्या पूछा दूसरा, मोल्स पूछा है, तो मोल्स में क्या करते हैं यहाँ पर, खाली क्या लिखते हैं 1, अरे यहाँ पे ऊपर मोल लिखते हैं, अरे 1 मोल होता तो इतना होता, तो देयरफॉर 5.6 ग्राम होगा तो कितना, ये सेकेंड रिलेशन होता आपका मोल्स के लिए, समझा। अरे बेटा वही हम लोग कर रहे हैं ABCD, धैर्य बेटा, तू लिख रहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ 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 रुक जा बेबी, बस बस सही गई, बस हो गया हो गया हो गया है हो गया है। अभी देखो बेटा ये दिख रहा है कि नहीं, बोला हेलो, देखना पहला मैंने 60 ढूंढा, फिर वो नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही आया कि नहीं, ये लोग ने वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, वैसा मत करो, यूनिटरी मेथड से करोगे तो फटाफट होगा बेटा। आर यू गेटिंग इट, हेलो, वो कैलकुलेट करोगे तो आपको 0.093 मोल्स आता, और उसमें हम लोग पार्टिकल्स करेंगे तो ऐसा आएगा। चलो अभी बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कर गया बेटा, अरे ही बार बार बाहर अंदर बाहर। अच्छा पहला ये वाला ओरली करते बेटा, चलो। ए बेबी, ए बाबा 1.7, चले मुलानी ना, कर क्या करेगी बोल बेटा, श्रुति 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 श्रुति, तू छे बोल, वॉल्यूम इज गिवन, और क्या क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल, तो पहले क्या करेंगे, अरे पहला मोल है ना बेबी, मोल और वॉल्यूम ले लेंगे बेटा। 1 मोल होता तो कितना होता, 22.4 DM³ होता। ये लोग ने कितना दिया है, तो कितना, तो कितना हो जाएगा 3 मोल्स, कितना इजी है। दूसरा क्या पूछा है, मॉलिक्यूल। अच्छा मॉलिक्यूल्स अब ये वॉल्यूम से लेके नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग,
1 मोल होता तो कितना होता 6.023, तो 3 मोल्स है तो कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 3। लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे को वॉल्यूम के साथ करना है, तो कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे बोल बेटा, क्या लेके बोल बेटा, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। 22.4 होता या डीएम क्यूब लेते तो कितना होता, हेलो, therefore if it is 67.2 then how much, easy, 3, तो बस 3 times basic whatever you, but are you getting it or not? अरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट गया कि नहीं? हाँ 2 दिया है, हाँ तो 2 ले 2 3 कोई रॉन्ग नहीं देने वाला है सब। क्या इथेन he has gone out for 3 weeks, हाँ इसलिए मैथ्स में भी नहीं आया होगा वो बेटा। चलो बेटा डन डन डन, ए हेलो, आया क्यों नहीं तुम लोगों को? ओके, ओह माय गॉड फिनितो, हाँ तो ये तो फिनितो मैन, देखा कि नहीं बेटा? अच्छा ये इसमें बेटा भी ए बस इधर देख, बाय 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 कर रहे हैं बेटा। अच्छा नहीं नहीं, मुझे वो परसेंटेज और आइसोटोपिक मास ढूंढने का बताने का है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा, डोंट वरी, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी।